Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and doing well in your studies and studying properly, preparing yourself for your board examination. Okay? Yes, children, be vigilant and be concentrated toward your board examination. It is very important for you. Ultimately, now, we are discussing the chapter Attitude and Social Coordination. In this chapter, we have read so many topics. So, in the previous one video, we have touched that topic. Now, in the today's video, I am going to discuss about the next topic. We will move further after the prejudice and discrimination, which is our last topic, which we have read yesterday. So, today we are going to start a new topic. So I am going to discuss with you about impression formation and attribution, a very important topic of this chapter, and the most importantly very interesting topic also. So let us study about that one. Impression formation. I think these are the words which you have came across so many times. या कई बार ये आपने सुना होगा impression formation. So आपका टॉपिक है impression formation and explaining behavior of others through attribution. So the two topics were there in the same main topic, and in this main topic the subtopics are impression formation and attribution. So before start understanding about the attribution, first of all we will understand about the impression formation. ओके, सो इम्प्रेशन फॉर्मेशन सबसे पहले पढ़ते हैं. आई ऑलरेडी पुट ऑन द हेडिंग, मैंने हेडिंग उसमें डाल ही दिया है. सी चिल्ड्रन, इम्प्रेशन फॉर्मेशन. इम्प्रेशन क्या होता है? इम्प्रेशन जैसे छाप. इफ वी कम टू द टिपिकल हिंदी ऑफ द इम्प्रेशन, सो छाप आना. इम्प्रेशन मीन छाप. तो वो इम्प्रेशन फॉर्मेशन कैसे होता है? So every time the main part and the main element of the impression formation is interaction. Every social interaction, जब भी हम लोग interaction करते हैं, whenever we interact with any person, we obviously and we usually form an impression about that person. ठीक है? So interaction is the main element. जब भी हम किसी से भी मिलते हैं तो हम एक इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं उसके बारे में, ठीक है, या उससे बात करते हैं तो इम्प्रेशन फॉर्म होता है. और हियर द टू पर्सन केम, द फर्स्ट पर्सन केम द परसीवर एंड द सेकेंड वर्ड इज द टारगेट. टारगेट और परसीवर. परसीवर वो फॉर्म द इम्प्रेशन. परसीवर वो होता है जो इम्प्रेशन फॉर्म कर रहा है, एंड टारगेट फॉर हुम द इम्प्रेशंस आर फॉर्म. टारगेट वो है जिसके लिए हमने इम्प्रेशन फॉर्म किया. और फॉर एग्जाम्पल इफ आई इंटरेक्ट विद समवन एंड इफ आई मेक एन इंटरेक्शन विद समवन, तो जिससे भी मैंने इंटरेक्शन किया वो इंटरेक्शन के समय मैंने उसके बारे में एक इम्प्रेशन फॉर्म किया. तो मैंने फॉर्म किया तो आई एम अ परसीवर, एंड जिसके बारे में मैंने फॉर्म किया दैट इज अ टारगेट. So I hope it is clear to you all the relationship between target and perceiver. So every time whenever we interact with, whenever any kind of social interaction came, we form an impression. Okay, when you go for a job interview and when you give an interview, the interviewer, those who are sitting there, they also form an impression about you. Okay, similarly when a new teacher came into your school and into your classroom, the first day you will form an impression about him or her. Okay, and these impression formation can be changed with the time also. Okay, and that we will study about that what are the different characteristics of the impression formation. impression formation के भी बहुत सारे characteristics भी होते हैं, ठीक है. प्राइमेसी इफेक्ट, रिसेंसी इफेक्ट, ओके, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन. अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे. द बेसिक यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द इम्प्रेशन फॉर्मेशन. आई टोल्ड यू द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज इंटरेक्शन.
and the two persons are involved here, target and perceiver. Target, for whom the impression are formed, and who is forming the impression, it is known as perceiver. Now, these impression formation are influenced by some factor. So you will write down the factors. Sometime it is asked, what are the factors which influence the impression formation? ये impression formation क्या? And impression formation is a very important part, children. आपने ये phrase भी सुना होगा. I think the first impression is the last impression. तो ये भी कहीं ना कहीं valid होता है. Okay, so and that make you build up your personality also, impression formation. ठीक है. So कौन से ऐसे factors हैं जो कि जिससे impression formation influence होता है, वो हम पढ़ेंगे. Factors. So impression formation are influenced by, first of all, nature of information. Keep it in mind, children, we are reading about the impression formation, not attribution. अभी हम लोग attribution discuss नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ impression formation discuss कर रहे हैं. तो impression formation को क्या चीजें influence करती हैं? Nature of information available to the perceiver. Nature of information available to the perceiver. Perceiver यानी those who are forming an impression. Okay, तो वो perceiver है. Perceiver के पास कैसा information है target के बारे में, जिसके बारे में वो इम्प्रेशन फॉर्म कर रहा है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है. अगर उसके पास टारगेट के बारे में पहले से ही कुछ इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो इम्प्रेशन वो फॉर्म करेगा वो एक अच्छा करेगा. ये डिपेंड करता है कि उसका नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द परसीवर. द इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट इज गुड or bad, that decide the impression formation of the perceiver. Secondly, situational factor. Situation also determine the formation, the impression formation of the perceiver. Situation. कभी-कभी हम जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे. आई थिंक यू विल ऑल्सो कोरिलेट विद इट. समटाइम द पर्सन इज नॉट बैड बट द सिचुएशन इज बैड. ऐसा कभी कभी होता है कि पर्सन बुरा नहीं होता बट सिचुएशन बुरी होती है, और उस बुरी सिचुएशन में जो होती है, वो जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो होती है वो पर्सन को बुरा बना देती है. And we form an impression about that particular person as bad because of, but that person will become because of the situation, but we form an impression. So these are the some factors which are responsible for the forming an impression about the target. Okay, the nature of information available to the perceiver, situational factor, then personality characteristics of the perceiver. perceiver की personality characteristics क्या है? आप सोचेंगे कि perceiver की personality, yes children, you also aware about it. As we always see our traits in other one. It is a basic human nature and basic human psychology. हम जैसे होते हैं हमको लगता है कि हम जिनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी वैसे ही है. Okay, we see just our mirror in other one. तो personality characteristics of the perceiver, the perceiver की जो personality की characteristics हैं वो खुद अगर ऐसे होंगे, like bad होंगे या good होंगे, तो वो वैसे impression भी form करेगा. तो perceiver की जो personality characteristics होती हैं वो भी बहुत determine करती हैं. Personality characteristics of the perceiver. So these are some factor. One more factor is left,
which is the social schemas, social schema या stereotype in the perceiver, social schema in the perceiver. ये सारी चीजें परसीवर की बात हुई है, सिर्फ एक सिचुएशनल फैक्टर की बात हुआ है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू दी परसीवर. नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू दी परसीवर, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर, सोशल स्कीमा इन द परसीवर, एंड फाइनली सिचुएशनल फैक्टर. Okay, fine. Situational fact. So these are some factors which influence in the formation, impression formation of the target. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. What are the things you have to study in this one and you have to write down in your board examination? That is very important part of you. You have to write out about what is impression formation. आप एक intro दोगे, एक concept define करोगे कि impression formation क्या होता है. Then आप ये बताओगे कि impression formation को कौन से factor influence करते हैं, which I had discussed right now. Now you will discuss about the some of the aspects of the impression formation. So in that aspect you have to first of all define the process. So factors के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे process. Factors के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? Process. Impression formation के process क्या है? ठीक है, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, कैसे इंप्रेशन फॉर्म होता है. तो 3 मेन प्रोसीजर एंड प्रोसेस आर इन्वॉल्व. फर्स्ट सिलेक्शन, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इन्फ्लुएंस. ठीक है, ये 3 चीजें हैं, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लुएंस. ये 3 प्रोसेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोसेस है किस चीज के, इंप्रेशन फॉर्मेशन के. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट द बिहेवियर, वी सेलेक्ट, वी टेक इनटू अकाउंट ओनली सम बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट पर्सन. सो सिलेक्शन यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई टारगेट के बारे में, तो उनमें से हमने कुछ को सेलेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज किया उन इंफॉर्मेशन को, फिर हम इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं. ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन में कुछ इंफॉर्मेशन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसे अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन, द सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज कंबाइंड इन अ सिस्टमैटिक वे, and influence we draw a conclusion about what kind of person the target is. तो बेसिकली चिल्ड्रन इम्प्रेशन फॉर्मेशन में 3 चीज़ें हम लोग करते हैं. एक सिलेक्शन करना, ठीक है, बहुत सारी बातें हमें बताई गई इसके बारे में या हमने भी कुछ ऑब्जर्व किया, तो उनमें से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, अब इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना. तो ये पूरा प्रोसेस होता है इम्प्रेशन फॉर्मेशन का. ठीक है, सो प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कौन से फैक्टर है जो कि इंप्रेशन फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ सम ऑफ द रिलेटेड एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द इंप्रेशन फॉर्मेशन. तो कुछ एस्पेक्ट्स भी हम लोग पढ़ लें. इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं? सो इसके एस्पेक्ट्स में चिल्ड्रन 3 काइंड ऑफ इफेक्ट्स आपको मिलेंगे. ठीक है, जानकारी. प्राइमेसी इफेक्ट, आपको ये 3 इफेक्ट के बारे में पढ़ना है. प्राइमेसी इफेक्ट, रिसेंसी इफेक्ट एंड हेलो इफेक्ट. प्राइमेसी, रिसेंसी, हेलो क्या है ये, इन्हें समझ लेते हैं. सी, जब हम इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं तो कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं. जैसे प्राइमेसी इफेक्ट आपने मैंने अभी एक फ्रेज पढ़ा था, मैंने बोला भी था, मैं अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. That is a primacy effect, means first impression is the last impression. एक्चुअली क्या होता है, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते. स्टार्टिंग में ही हमने कुछ ऐसा देख लिया उस पर्सन के बारे में, या किसी ने हमें उसके बारे में कुछ ऐसा बता दिया, या हमने ऐसा कुछ पढ़ लिया, तो उसी से ही हम सारे इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लेंगे कि हाँ, अगर हमने ठीक है, तो वो हमारा लास्ट इम्प्रेशन हो जाता है.
कभी कभी जब हम डिटेल में जाते हैं, व्हेन वी गो इनटू द डिटेल ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो दैट इज नोन एज रिसेंसी इफेक्ट, यानी लास्ट इंप्रेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंप्रेशन। बेसिकली कहने का मतलब ये है, कभी कभी क्या होता है, समटाइम द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन एन ऑर्डर, ओके, द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस इन विच द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड अफेक्ट द काइंड ऑफ इंप्रेशन फॉर्म। किस ऑर्डर में आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो भी इंप्रेशन की फॉर्मेशन में बहुत इफेक्ट करता है। तो प्राइमेसी इफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन है, मतलब कोई स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा हो गया, उसी को लेके हम पूरा लास्ट तक वही इंप्रेशन उस पर्सन के बारे में बनाए रखते हैं। रिसेंसी इफेक्ट में क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में हम कुछ भी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई उसकी बेसिस पे हम कोई भी इंप्रेशन नहीं फॉर्म करते, कोई भी जजमेंट नहीं करते, पूरी इंफॉर्मेशन देखते हैं, सब चीजें गैदर करते, फिर जो एक इंफॉर्मेशन फॉर्म होता है, एक इंप्रेशन जो फॉर्म होता है, तो वो होता है रिसेंसी इफेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज द वेरी इंटरेस्टिंग इज द हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हमने पर्सन की एक ही क्वालिटी या एक ही टेंडेंसी को लेके हम उसमें यही सोचते हैं, तो उसमें और भी सारी वही क्वालिटी होंगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पर्सन की मुझे पॉजिटिव क्वालिटी मालूम चलती है, तो हम उसके बारे में ये इंप्रेशन फॉर्म करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, ये अक्सर होता है। या हमें किसी के बारे में अगर नेगेटिव पता चलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें सारी चीज़ें नेगेटिव ही होंगी। तो दैट इज एन हैलो इफेक्ट। दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द impression formation, or you can say that the effect of the impression formation: primacy effect, recency effect and halo effect. Primacy, first impression, is the last impression. Recency, last impression is the strongest impression. And halo effect means a tendency to hold one of the specific quality of a person. Okay, this is for example in your book NCERT is also given, like if I get to know that my target for whom I am forming an impression, and I get to know that that target is having the characteristics of like उसमें tidy होता है, वो बहुत ही tidy है, punctual है, तो I will definitely add on some of the more positive quality, like वो hard working भी होगा, sincere भी होगा। तो this is an halo effect. I hope children you understand about the impression formation. So here we have completed a description about the impression formation. We have read what is impression formation. The two persons are involved in forming an impression, target and perceiver. What are the factors which influence in formation of an impression? Process of the impression formation and the effects of the impression formation. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे एट्रीब्यूशन के बारे में। एट्रीब्यूशन मीन्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, असाइनिंग कॉज टू द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। असाइनिंग कॉज, अगर कोई पर्सन या कोई भी चीज किसी भी तरह से बिहेव कर रही है और उसके लिए आप एक कॉज असाइन कर रहे हैं, तो दैट इज एन एट्रीब्यूशन। आप एक उसको रीजन दे रहे हैं कि ये चीज इसलिए हो रहा है, तो यू आर डूइंग एन एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन मीन्स एट्रीब्यूटिंग और असाइनिंग द कॉज टू द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। इट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना एट्रीब्यूशन। ये भी ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम लोग अक्सर ही एट्रीब्यूशन करते हैं, हर एक के बिहेवियर को एक रीजन जरूर असाइन करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी चाइल्ड डज नॉट ब्रिंग हिज और हर कॉपी, तो ऑब्वियसली द टीचर डायरेक्टली गिव एन एट्रीब्यूशन दैट ही हैज नॉट डन हिज और हर होमवर्क। टीचर ये एट्रीब्यूशन तुरंत करेंगी कि उस बच्चे ने अपना काम नहीं किया होगा, ठीक है, इसी वजह से वो अपनी कॉपी को नहीं लाया है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर द एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन क्या है? एट्रीब्यूशन में परसीवर यही आगे जाता है इंप्रेशन फॉर्मेशन, अटैचिंग और असाइनिंग अ कॉज फॉर द टारगेट बिहेवियर
is the main idea in attribution. ठीक है, एट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये एट्रीब्यूशन कई तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला ये है कि इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। एट्रीब्यूशन इंटरनल भी हो सकता है, एट्रीब्यूशन एक्सटर्नल भी हो सकता है। When we assign a cause to the person behavior, we can broadly classify the cause as being internal, something within the person, or external, something outside the person. किसी भी पर्सन के जो बिहेवियर है उसका उसके पीछे जो रीज़न हम लोग देते हैं, तो उसका एट्रीब्यूशन हम लोग दो तरीके से, इंटरनल भी दे सकते हैं, एक्सटर्नल भी दे सकते हैं। यानी इंटरनल एट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि आप उस विद इन द पर्सन की बात हो रही, यानी पर्सन की ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और जब हम लोग एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग सिचुएशनल फैक्टर की बात कर रहे हैं। सिचुएशन, जैसे सेम एग्जांपल लेंगे ना, टीचर, ये एट्रीब्यूशन, टीचर का एट्रीब्यूशन क्या होता है, बट सिचुएशन ये है कि द चाइल्ड, द स्टूडेंट हैव नॉट ब्रिंग हिज और हर कॉपी, everybody have submitted it, but one of the child is there who have not submitted his or her copy. Now what will be the teacher's attribution? So teachers, if the teacher attributed that the child has not done his work, that's why he has not bring his copy, so it is an internal attribution. जो टीचर है वो इंटरनल एट्रीब्यूशन कर रही है। पर वहीं अगर टीचर ये एट्रीब्यूशन करे कि मे बी ही हैज ब्रिंग द कॉपी बट somebody has stolen it from his bag, किसी ने उसके बैग से ले लिया होगा, तो ये एक्सटर्नल है। तो एट्रीब्यूशन इंटरनल भी होता है, एट्रीब्यूशन एक्सटर्नल भी होता है। नाउ सेकेंड, कुछ फैक्टर स्टेबल होते हैं, कुछ होते हैं अनस्टेबल। स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। स्टेबल फैक्टर्स यूजली आर देयर नॉट बी इजी टू चेंज, और अनस्टेबल जो होते हैं उन्हें हम लोग चेंज कर सकते हैं। स्टेबल फैक्टर चेंज, डू नॉट चेंज विद द टाइम, बट अनस्टेबल फैक्टर कैन बी चेंज। स्टेबल फैक्टर वो है जो कि चेंज नहीं हो सकते हैं, और अनस्टेबल जो है वो चेंज हो सकते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल है। वीएनएस का एक क्लासिफिकेशन है कॉजल फैक्टर को लेके, इसी एट्रीब्यूशन को लेके, ठीक है। ये इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल की ही बात हो रही है। ठीक है, मैंने यहाँ अनस्टेबल लिख दिया और स्टेबल लिख दिया। जैसे कि एबिलिटी, ये इंटरनल फैक्टर भी है, ठीक है, एबिलिटी आपके ऊपर है, ये कोई सिचुएशनल फैक्टर नहीं है, और ये स्टेबल है, ये चेंज नहीं हो सकते टाइम के साथ। अनस्टेबल क्या है? एफर्ट आपका चेंज हो सकता है, हार्डवर्क आपका कम हो सकता है, कभी आप ज्यादा हार्डवर्क कर सकते हो, कभी कम कर सकते हो, और ये दोनों चीजें इंटरनल है। दीज टू थिंग्स आर इंटरनल। एबिलिटी भी आपका इंटरनल है फैक्टर, एफर्ट और हार्डवर्क, बट एबिलिटी स्टेबल है, ये डू नॉट चेंज विद द टाइम, और ये सारे अनस्टेबल है, ठीक है। एबिलिटी आपकी नहीं कभी भी जाती है, जो चेंज हो, वेरिएशन आता है, इसी में आता है आपके एफर्ट में, आपके हार्डवर्क में। कभी हम ज्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं। जब हम ज्यादा करते हैं तो वी अचीव व्हाट वी वांट, कम करते हैं वी आर अनएबल टू अचीव इट। सो ऑल डिपेंड ऑन आवर हार्ड वर्क। एक्सटर्नल फैक्टर आपका क्या है? फेट। फेट विल नेवर चेंज। फेट, आपकी फेट जो है वो आपकी किस्मत चेंज नहीं हो सकती, बट ये एक्सटर्नल फैक्टर है। देन टास्क कैरेक्टरिस्टिक, टास्क की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका अनस्टेबल फैक्टर है, ये चेंज हो सकता है। सो ये वीएनएस की क्लासिफिकेशन है। वीएनएस इज अ नेम ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। वीएनएस की क्लासिफिकेशन है ये,
ऑफ एट्रीब्यूशन या कॉजल फैक्टर। आई होप ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं चिल्ड्रन, समझ में आ रहे हैं आपको कि एट्रीब्यूशन इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। वन ऑफ द phenomena which is given in your book also and very important also, fundamental attribution error. This is the thing which is mostly asked in the paper. In the previous year paper में आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, fundamental attribution error. What is fundamental attribution error? ये है क्या? When in making attribution there is an overall tendency of the people to give greater weightage to internal or dispositional factor rather than to external or situational factor. This is called fundamental attribution error. It is again a valid and true concept children. ये बहुत सही बात है। आप देखेंगे ज्यादातर, जैसे टीचर ने भी देखा, सबसे पहला एट्रीब्यूशन यही किया कि बच्चे ने काम नहीं किया होगा। तो यूजली हम लोग ज्यादातर सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है इंटरनल फैक्टर को देते हैं रेदर देन द एक्सटर्नल फैक्टर, एंड दैट इज नोन एज फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। नाउ सक्सेस और फेलियर का भी एट्रीब्यूशन चेंज होता है, विच इज नोन एज एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। तो वियरनेस के क्लासिफिकेशन के बाद आपको दो चीजें इसमें पढ़नी है, एक फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर के बारे में और एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर तो मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जिसमें हम ज्यादा वेटेज जो होता है वो इंटरनल को देते हैं, इंटरनल फैक्टर को ज्यादा वेटेज जो होता है हम किसको देते हैं? इंटरनल फैक्टर को। ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में। एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट, ठीक है। एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या है? एक्टर ऑब्जर्वर, और इसमें दो चीजें आती हैं, एक्टर रोल एंड ऑब्जर्वर रोल। तो जब एक्टर रोल यानी हम जब एक्ट कर रहे हैं, और ऑब्जर्वर रोल जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच इज समथिंग एट अ डिस्टेंस। तो एक्टर रोल जब हम एक्ट कर रहे हैं तो हमारा, जब हम खुद एक्ट करते हैं तो हमारा एट्रीब्यूशन बहुत डिफरेंट होता है, और वहीं जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा एट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। Yes children, again it is a human psychology and I think you will validate with it, and you also have a personal experience of this one, and it is very true. Actor observer. Now it also determines the success and failure. Like when we are in the actor role, तो हम अपनी सक्सेस के लिए अपने हार्डवर्क को बोलते हैं कि वी हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब, दैट वाई आई हैव सक्सीडेड। ओके। और फेलियर के लिए हम लक ऑफ फेट को बोलते हैं, मतलब सक्सेस के लिए इंटरनल फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं और फेलियर के लिए एक्सटर्नल को। बट वहीं जब हम ऑब्जर्वर रोल में होते हैं तो हम सक्सेस के लिए एक्सटर्नल फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं और फेलियर के लिए इंटरनल। जस्ट अपोजिट हो जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है हमारा एट्रीब्यूशन। जस्ट अंडरस्टैंड विद दिस विद एन एग्जाम्पल। आई थिंक आप भी को रिलेट करोगे, आप भी अपने फ्रेंड्स या फिर ऐसा आपने देखा होगा। यूजली जब हम सक्सेस होते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, पर अगर कोई और सक्सेस होता है तो कहते हैं कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, ओके, ही हैज़ अ वेरी गुड लक। वहीं हम फेलियर होते हैं तो हम कहते हैं कि पेपर हार्ड था और दीज आर द सम डिफिकल्टीज थी, हम नहीं कर पाए। ओके, अपने को नहीं बोलेंगे कि देयर इज लेस हार्ड वर्क आई हैव डन, नहीं। बट वहीं ऑब्जर्वर रोल में होते हैं तो दूसरे के फेलियर के लिए हम उसके इंटरनल एट्रीब्यूशन करते हैं। हम कहते हैं ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क प्रॉपरली, उसने हार्ड वर्क नहीं किया, उसने एफर्ट नहीं किया। So this is known as actor observer effect.
So in today's video, I had discussed with you the two main concepts, impression formation and attribution. I hope children you understand it. Okay. And I just say thank you so much for carefully observing this video and liking and listening to me continuously. Thank you so much.